we have done the spherical mirrors. Okay, and we have also done the method through which we can distinguish between the three types of mirrors. Okay, if you are given with plane, concave and convex mirror, तो मैंने आपको तीन mirrors दिए थे. Okay, but you don't know which one is concave, plane, and which one is convex mirror. So how are we going to locate the three mirrors? So it will be done with the help of the image formation that we form. Okay, in case of plane mirror में जो image आएगी वो same size and shape की होगी. It will be erect. Okay, it will be erect and it will be laterally inverted. So lateral inversion का phenomena ये show करेगी where the left side of the object will appear as right and right side of the object will appear as left. Okay, if you are given with concave mirror, तो concave mirror हमेशा opposite में bigger plus they form inverted image. Okay, and the image is magnified. If you are given with convex mirror, तो आपको पता है कि convex mirror जो है कौन सी इमेज बनाएंगे पर्सन. And same image is formed. Plane mirror भी जो है virtual image भी form करते हैं. Then the image will be erect, but the difference. Okay, but the difference between the plane and the convex mirror will be plane mirror में जो उसकी shape और जो size होगा वो बिल्कुल same होगा. Okay, but that will not be same in case of convex mirror where the size of the image will be diminished. तो ये हमने last time किया था, ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी. Now see if we are able to do practically also. Okay, so you can see this is the mirror here. मेरे पास ये mirror है एक. Okay, this is the reflecting side and this is the non-reflecting side. Can you see? देख सकते हो यहाँ पर जो है वो reflection नहीं होगी. Okay, and here this is the smooth and the polished surface. Okay, so here the reflection process it will take place. Now I am going to hold. Okay, now I am going to hold anything. Okay, कुछ object ले लेते हैं. अब आपने इसमें देखना है कि आपको वो object जो है वो कैसा नजर आ रहा है. Okay, randomly मैंने कोई mirror select किया है. I have selected a mirror. Okay, मुझे नहीं पता ये कौन सा mirror मैं आपको दे रही हूँ. Okay, right? You have to tell me which mirror is this. Just let me see firstly. आपको दिख रहा है इसमें? Are you able to see? Are you able to see? दिख रही है? इस पेन के कैप की इमेज दिख रही है आपको इसमें? Yes, are you able to see? Now tell me which type of mirror you find this. Is it concave, convex or plane? So that is concave mirror. You can see the mirror is highly magnified. The image is highly magnified. बड़ी इमेज बन रही है. देखा आपने? Okay? देखा आपने? Have you seen? कि इसमें जो इस पेन के कैप की इमेज बन रही है वो तो बहुत ज्यादा बड़ी बन रही है. Okay? That is highly magnified. देखो. अब जैसे जैसे मैं उसको दूर लेके जा रही हूँ वो इमेज जो है वो और ज्यादा बनेगी. ठीक है, अब आप पास में हो तो मैं आपको बताऊँ. ये देखो, ठीक है, वो मैग्निफाइड हो रही है इसीलिए वहां से निकल रही है. राइट? तो अगर आप ऐसे फिजिकली देखो तो वो जो इमेज है वो बहुत ज्यादा ब्लर हो रही है. ठीक है, बड़ी होके ब्लर हो रही है. दैट मीन्स इट इज स्प्रेडिंग. राइट, बट जितना आपको दिख सकता है आपने इसमें देख लिया हुआ है. यू हैव सीन दैट हाउ द इमेज फॉर्मेशन इज देयर. तो यहाँ पर देखो, ये देखो, दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट कैन यू सी? हाँ जी, देख सकते हो बेटा. एट दिस पॉइंट, ठीक है, तो मैग्निफाइड है, बड़ी है इमेज उसकी. राइट? ये एक्चुअली हमें सेटअप करना पड़ता है पहले पूरा.
राइट। तो अब आपने मिरर्स देख लिए हैं, मिरर की एक रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, दूसरी रिफ्लेक्टिंग साइड नहीं है. द सेकंड साइड इज नॉट पॉलिश्ड सरफेस, इट इज हैविंग ओनली वन साइड एज अ पॉलिश्ड सरफेस. ओके, so this is how we are going to locate the three types of mirrors. Right, is this clear till now? यहां तक clear है? Yes, no? Clear till now? Right. अभी नेक्स्ट देखो, मिरर्स के साथ साथ हमारे पास वी आर हैविंग वन मोर कॉम्बिनेशन ऑफ spherical lenses. Last time we started with the concept of spherical lenses, right? Lens जो है that is also a piece of transparent material. Okay, it is a piece of transparent material where we can assume the material to be a glass. ठीक है, ग्लास का बना हो सकता है, right? That concentrates or converges. ठीक है, कंसंट्रेट और कन्वर्जेस का मतलब क्या है कि एक ही जगह, जैसे फोकस पे आके सारी की सारी रेज जो है वो मीट करती है ना, तो कन्वर्ज करने का मतलब भी यही है, मीट करते हैं वो एक पॉइंट पे आके. ठीक है, और डाइवर्जेस, ओके, आइदर दे मीट और दे अपीयर टू नॉट मीट. ठीक है, they appear to not meet, जैसे पीछे बनेगी उसकी इमेज. That converges or diverges the light rays that pass through them by refraction. ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और फिनोमिना करने जा रहे हैं. इससे पहले आपने रिफ्लेक्शन स्टडी किया, आपने रिफ्लेक्शन स्टडी किया है. रिफ्लेक्शन वाज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कि लाइट रेज जो है वो बाउंस बैक कर जाती हैं. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज. ओके, ये हमने पढ़ा था, दिस वाज रिफ्लेक्शन. अब मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी करने को एट योर होम. मैंने आपको बोला था जस्ट टेक एनी पेन पेंसिल एंड डिप इट इन अ ग्लास, हाफ ग्लास ऑफ वाटर. ऐसे ही बोला था मैंने आपको. हाँ जी, राइट. नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या देख रहे हो आप इसमें जब मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है? व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? कुछ दिख रहा है आपको इसमें चेंज? Any change you observe in this? Yes, Karthik. यस मैम. मैम आई थिंक जो ये पेन जितना उसका पार्ट पानी में है मैम, वो उतना थोड़ा वो मैग्नीफाइड लग रहा है पेन वहां से. ओके, मैग्नीफाइड लग रहा है. कुछ अलग से नहीं नजर आ रहा, जैसे ऊपर वाला पार्ट अलग से नजर आ रहा है और नीचे वाला पार्ट जो है वो डिफरेंट सा नजर आ रहा है, ऐसे लग नहीं रहा कुछ कि ऊपर और नीचे तो दो पार्ट हैं? यस मैम. मैम जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ऐसे बेंड लग रहा है. हाँ, बेंड लग रहा है. ओके, द पार्ट इज बेंड एक्चुअली. आपको ऐसे लग रहा है कि जो ऊपर पार्ट है वो डिफरेंट है और जो नीचे पार्ट है वो डिफरेंट है, बट है तो ये पेन ही है. तो ये पेन ही, पेन के दो अलग अलग पार्ट तो है नहीं. दैट मीन्स व्हेन आई पुट दिस इन एनी ऑफ द मीडियम, लाइक वाटर में मैंने इसको पुट किया, ठीक है, व्हेन आई प्लेस दिस पेन इन दी वाटर, तो क्या हुआ होगा, इस पेन की बेंडिंग हो गई. ऐसे कहा ना आपने, बेंडिंग हो गई है. तो वो एक्चुअली
आपको लगता है कि ये पेन बेंड हुआ है? डू यू फील लाइक द पेन हैज बेंडेड? नो, पेन तो सेम है। तो बेंड क्या हुई होंगी? लाइट रेज, जिन्होंने हमें उसकी इमेज देनी है, ठीक, right? The image, it will be conveyed by the light rays which will be fallen on that part. Okay, so the bending of the light rays when they pass from one medium to another. Now here we are talking about two different medium. अब मैं यहाँ पर दो मीडियम्स की बात कर रही हूँ। देखो, एक मीडियम है एयर, एक मीडियम है एयर, एक मीडियम है ग्लास। तो जब मैंने उसको एयर में रखा तो वो पेन मुझे डिफरेंट नजर आ रहा है, जब मैंने उसको पानी में डाला तो उसकी जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट आ रही है। ओके, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि जो लाइट रेज हैं जब वो एयर से वाटर में गई तो वो बेंड हो गई। ओके, जब लाइट रेज एयर से वाटर में गई तो वो बेंड हो गई। इस बेंडिंग के फिनोमिना को क्या कहते हैं? हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके, सो मिरर्स में रिफ्लेक्शन का फिनोमिना चलता है और लेंसेज में कौन सा फिनोमिना चलता है? रिफ्रैक्शन का फिनोमिना चलता है। So the phenomena that we are using in the mirrors, that is reflection, जिसमें लाइट रे जो है वो एक ही मीडियम में, एयर में है, ठीक है, उसमें वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, बाउंस बैक कर जाती है। बट रिफ्रैक्शन में क्या होता है? वही लाइट रेज जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एयर और ग्लास की। वी आर टॉकिंग अबाउट एयर एंड ग्लास। तो मेरे यहाँ पे मीडियम क्या बनते हैं? एयर और ग्लास बनता है कि जब एयर से ग्लास में जा रहा है तो जो लाइट रेज हैं वो क्या कर रही हैं? बेंड कर रही हैं, और इस बेंडिंग को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो हम लेंसेज में कौन सा फिनोमिना यूज करेंगे? हम लेंसेज में रिफ्रैक्शन का फिनोमिना यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज फॉर मिरर एंड दिस इज फॉर लेंस। हाँ जी, ठीक है। तो मिरर, they are based on the phenomena of reflection, and on the phenomena of refraction the lenses are based on. Now coming to the next, again there are two types of spherical lenses, convex lens and concave lens. तो जो हम मिरर्स पढ़ के आए हैं वैसे ही हैं लेंसेज, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि जो मिरर्स हैं उसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। देखो, one side is reflecting and one side is not reflecting. Can you see? Can you see? One side is reflecting and one side is not reflecting. But in case of lenses, their both sides are reflecting. देखो, this is a lens. इसकी दोनों sides जो हैं वो reflecting है. Okay, its both sides are reflecting. This is one and this is the second one. ये थोड़ा मोटा है, thick है. Can you see? एक थोड़ा पतला है, एक थोड़ा मोटा है, right? Right? चलिए, अब again they are the part of the, like the mirrors, they were part of the sphere, ठीक है। जैसे मिरर्स जो थे वो स्फीयर का पार्ट थे, वैसे ही जो है लेंसेज भी जो है वो आपके दो स्फीयर्स को कंबाइन करके मिलते हैं। ओके, तो वैसे आपको दिखने में ये थोड़ी अलग अपीयरेंस देते हैं क्योंकि ये स्फीयर की तरह ही लगते हैं, ठीक है। जैसे आपके मिरर्स भी जो है वो आपको एज अ स्फीयर ही लगते हैं। ओके, अगेन जो इनकी शेप है हम डिस्कस कर लेते हैं। So the shape of convex and concave lenses like this. अगर मैं convex lens की बात करूं सबसे पहले, if I talk about convex lens, ठीक है, तो convex lens की जो shape होती है वो कुछ ऐसी होती है। The shape of convex lens is like this. A lens
विच इज थिकर फ्रॉम मिडल। ये मिडल में से क्या होता है, थिक होता है। A lens that is thicker from the middle, okay? और जो edges है उससे क्या होता है, thin होता है, and thinner from edges, okay? ये edges से क्या हो जाता है, thin हो जाता है। इसको हम कौन सा लेंस कहते हैं, कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और कन्वेक्स लेंस दे आर द कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि ये सारी की सारी रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे जाके क्या करवाते हैं, मीट करवाते हैं। ओके, हियर द लाइट रेज दे विल डेफिनेटली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू इट। ओके, तो ऐसे बना देती हूँ। जब ये लाइट रेज जो है, ठीक है, जब ये लाइट रेज जो है ये इस लेंस में से पास करेंगी तो दे विल डेफिनेटली मीट एट सम पॉइंट। ओके, तो दे विल मीट एट अ पॉइंट। तो इसीलिए हम इनको कौन सा लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, राइट। ये सेंटर में से थोड़ा मोटा होता है और साइड से क्या होता है, पतला होता है, एजेस से। ये एजेस होती हैं, दीज आर द एजेस। तो आप देख सकते हो यहां से ये मोटा है, ओके, एंड एजेस से ये पतला है। So this is the convex lens. Okay, let me see कि मैं ये पॉइंट यहीं पे आपको करवा सकती हूँ कि नहीं, दिखेगा ही नहीं ना आपको इतने दूर से। इतनी दूर से नहीं दिख रहा ना आपको, क्या दिख रहा है, देखो जरा, दिख रहा है, आई गेस यू शुड बी सीइंग। देखो आपको लेटर्स बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, कैन यू सी, आपको लेटर्स बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, देखो आ रहे हैं, ओके, ठीक है। अब सेम ट्राई करते हैं इस पे। अब कैसे नजर आ रहे हैं, देखो पहले एम देखो, सी द पोजीशन ऑफ एम, एम यहां पर, अब मैं इस एम के ऊपर फोकस करने लगी हूं, आपने देखना है कि लेंस में से एम कैसा नजर आएगा आपको। आर यू एबल टू सी, यहां पर देखो डिमिनिश नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, सी इस एम को देखो, ऐसे देखो और ऐसे देखो, आ रहा है कि नहीं नजर, चलो मैं और कुछ ट्राई करवाती हूँ, इफ यू आर नॉट एबल टू सी। चलो ये देखो, फर्स्टली फॉर द कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं, पहले ये देखो, दिस इज योर बुक, ओके। नाउ यू जस्ट हैव टू सी कि इस बुक में थोड़ा सा चौक लग गया, मैं साफ कर देती हूँ इसको, लेट मी क्लीन इट। ओके, इट्स क्लीन्ड नाउ। अब देखो, दिस इज योर बुक, नॉर्मल लेटर्स देखने हैं और जब मैं लेंस प्लेस कर रही हूँ तो देखने हैं। अब तो मुझे भी इतने इतने बड़े नजर आ गए, आपको नहीं आए अभी तक। मैग्नीफाइड, देखो जब मैं इसको और दूर लेके जा रही हूँ तो और बड़े हो रहे हैं, देखो एट सम पॉइंट, कैन यू सी, अब ऐसे देखो,
अब ऐसे देखो एक बारी बुक को, और एक बारी अब इस लेंस के साथ देखो। कैन यू सी? अब आप जैसे मर्जी रीड कर लो, देखो। No, it is not a good practice because plants hold soil particles. Okay, it is clearly visible. अब again see the book. बुक देखी हमने, अब देखो। कैन यू सी? अभी नजर आ रहे? अब तो मेरे को भी नहीं नजर आ रहा कुछ। वेरी स्मॉल, यस, they are very very small, right? तो that means इसमें से एक लेंस जो है वो आपको बहुत बड़ी इमेज दे रहा है, and the second lens is giving you a diminished image. Okay, clear till now? यहां तक समझ आया? Okay, तो इसमें ये जो मैंने आपको लेंस बताया है, that was actually giving you the highly magnified image of the object. This is the convex lens. This is your convex lens. Okay, this is your convex lens. Is this clear? Right? अब दूसरा करते हैं concave lens. The next one is concave lens. तो concave lens कैसा होगा? The shape of the concave lens is like this. This is the shape of the concave lens. Right? थोड़ा सा पतली शेप और करते हैं। So this is the shape of the concave lens. अब आपने मुझे बताना है कि अगर ये जो था वो मिडल में से थिक था और एजेस में थिनर था, तो ये आपको कैसा नजर आ रहा है? फ्रॉम द दिस पार्ट मिडल में से कैसा है? A lens that is thinner. Very good. That is thin from the edges. That is thin from the middle and it is thicker from the edges. और edges में से क्या है? Thicker है. Okay. अब इसमें से जो लाइट रेज पास करेंगी, they will not actually meet. एक्चुअली मीट नहीं करेंगी, ठीक है? इसमें से जो लाइट रेज निकलेंगी दे विल नॉट एक्चुअली मीट, तो ये क्या कर जाएंगी? ये डिस्पर्स कर जाएंगी, स्कैटर कर जाएंगी, बट ये मीट नहीं करेंगी। ओके, तो अगर आप इसमें से लाइट रेज पास करवाओगे तो द लाइट रेज दैट विल पास फ्रॉम दिस, दे विल एक्चुअली नॉट मीट एट अ पॉइंट। तो इसीलिए ये कौन सा लेंस बन जाता है? डाइवर्जिंग लेंस बन जाता है, जिसमें लाइट रेज जो है वो मीट नहीं करती हैं। सो इट इज द लेंस इन विच द लाइट रेज दे डोंट मीट। तो आप मिरर्स के साथ इनको कंपेयर कर सकते हो। कैन यू कंपेयर देम विद द मिरर्स? मिरर में जहां पर सारी की सारी लाइट रेज मीट करती थी, वो कौन सा मिरर आप कहते थे? जिसमें रियल इमेज बनती थी, ठीक है, और वो जो इमेज थी वो मिरर के आगे बनती थी और मैग्निफाइड इमेज बनती थी। ऐसा अच्छा मिरर कौन सा था? कनकेव। तो अब हमारा लेंस ऐसा कौन सा है? कन्वेक्स, ठीक है।
तो जो भी जैसी भी प्रॉपर्टीज कनकेव मिरर शो करता था, अब वो कौन सा शो करेगा, कन्वेक्स लेंस वैसी प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो मिरर्स एंड लेंस दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो कनकेव मिरर की सारी प्रॉपर्टीज कौन शो करेगा, कन्वेक्स लेंस। इसमें जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, ओके, इन्वर्टेड बनेगी और वो लेंस के आगे बनेगी, ठीक है। दैट मीन्स इट विल बी रियल वन। और मैग्नीफाइड होगी, बड़ी होगी, जैसे जैसे आप उसकी पोजीशन चेंज करोगे वैसे वैसे जो आपकी इमेज है उसकी पोजीशन भी जो है वो चेंज होती जाएगी एंड इट विल गिव यू मैग्नीफाइड इमेज। तो इसने आपको बड़ी इमेज दी थी ना, ये देखो ये वाले लेंस ने आपको बड़ी इमेज दी है, कैन यू सी। अच्छा और पॉइंट देखो, सी 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 क्विकली सी बेटा, सी आपको इमेज इन्वर्टेड नजर आई, कन्वर्जिंग की नजर आई आपको, कैन यू सी द ऑपोजिट इमेज ऑफ दिस लेटर कन्वर्जिंग। देखो ये रहा CON, राइट, VER सी। तो ये आपका कौन सा मिरर है, ये आपका मिरर, ये कौन सा लेंस है, दिस इज द कन्वेक्स लेंस। और जो आपको इमेज दे रहा है ये बड़ी दे रहा है, कैन यू सी, ठीक है, बड़ी इमेज दे रहा है आपको ये। सो ऑल द प्रॉपर्टीज दे विल बी शोन बाय दिस लेंस। हाँ जी, यस मैम। चलिए। Now this mirror, this lens is actually the convex lens, ठीक है। तो ये वाला जो आपका लेंस है ये कन्वेक्स लेंस है एंड कैन यू सी ये आपको थोड़ी मैग्नीफाइड थोड़ी डिमिनिश्ड इमेज दे रहा है, बट ये जो इमेज है वो सीधी है, ओके। इफ यू सी तो बिल्कुल लेंस जो है वो क्लियरली दिखा नजर आ रहा है, कैन यू सी। आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत दूर से है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं है बताओ पहले मुझे। जैसे उसमें आपको इन्वर्टेड इमेज नजर आई, इसमें नहीं आ रही है ना, नहीं पता चल रहा ना, क्योंकि इमेज छोटी बन रही है ना यहाँ पे, तो इट विल माइट बी नॉट क्लियर टू यू, ठीक है। तो दिस इज द कन्वेक्स लेंस एंड दैट वाज, दिस इज द कनकेव लेंस, ओके, एंड दिस इज द कन्वेक्स लेंस। तो ये दोनों लेंसेज हैं जो मैंने आज आपको दिखाए हैं, ओके, राइट। चलिए, सो एज कार्तिक है सेड कि हमने रे डायग्राम एक डिस्कस कर लेते हैं, उसका ये डाउट है। So let's make the lens, then let's make the mirror. तो कनकेव मिरर का डायग्राम है ये, जिसमें जो इमेज में से, जो ऑब्जेक्ट में से रेज आ रही है, दे आर कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी। तो इंफिनिटी में से आ रही है, तो हेयर वी विल बी यूजिंग द फर्स्ट रे रूल, ठीक है। फर्स्ट रे रूल क्या कहता है कि कोई भी आपकी रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो दे विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, ओके। तो ये जो है ये सबसे पहले फोकस में से पास करेगी, लेट इट बी F, लेट इट बी C, लेट इट बी P, ठीक है। सेकेंडली अगेन some ray of light, they are also coming from the object that is actually at infinity, so again they will pass through this point, principal axis के पैरेलल है तो फोकस में से जाएगा, ठीक है कार्तिक। तो यस मैम। मैम मेरे को यहाँ पे डाउट है कि जो आपने अभी यहाँ पे रूल 3 अप्लाई किया है, मैम रूल 3 आपने ये लिखवाया है कि इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस विल मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैम अब यहाँ पे आप रे प्रिंसिपल एक्सिस से निकाल रहे हो नीचे से। हाँ, तो यहाँ पर नीचे लेके गई हूँ ना मैं, यहाँ पर हमारी ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस में से जा रही है, वही था रूल। मैम रूल में जैसे है कि अगर कोई रे ऊपर से फोकस से पास कर रही है तो फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस में, मैम आपने जो रे अच्छा, बनाई ऐसे है कह अभी रहे हो वो आप कि पहले अगर कोई, प्रिंसिपल अच्छा एक्सिस से पास करवा रहे हो। ऐसे कह रहे हो फिर आप, है ना, यू आर यस मैम। कि फोकस में से अगर कोई रेज ऑफ लाइट आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है, बट एक्चुअली यहाँ पर एंड मैम फिर रूल 1 ही अप्लाई होगा आपका, यहाँ से दोनों जो है वो पैरेलल टू वही जाएंगी, देयर ओनली रूल 1 विल बी अप्लाइड, ठीक है। दोनों जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस में से जाएंगी, रूल 1 विल बी अप्लाइड, ओके। यस मैम। So the image is formed at focus
पॉइंट साइज होगी, बहुत छोटी होगी, बहुत ज्यादा छोटी। ओके, क्लियर है अब ये यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। जैसे आपने मिरर्स के लिए कुछ टर्म्स की थी, वैसे ही लेंसेज के लिए भी कुछ टर्म्स हैं। प्रिंसिपल फोकस वही जो हम पहले करके आए हैं, टर्म्स हम कल करेंगे। ओके, so we'll be doing these terms tomorrow.